ICSC Mathematics Class 10th Chapter 12 Exercise Self-Evaluation and Revision. Question number 19. In the given figure, triangle ABC and triangle AMP are right angled at B and M respectively. Given that AC is equal to 10 centimeter, AP is equal to 15 centimeter, PM is equal to 12 centimeter. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. And second part is find AB and BC. You see, question number 19. ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है AMP. So angle angle B is equal to angle M. You see, angle B is equal to angle M, that is 90 degree, and angle A is common in both. So now angle P and C are complementary angle to angle A. You see, देखिए P plus A will be 90 degree. C plus A will be also be 90 degree. It means that angle P और C भी equal होगा. Therefore, the angle P is equal to angle C. Therefore, triangle ABC is similar to the triangle AMP. Angle criteria are axiom of similarity. Now, the second part is we have to find the AB first. So, let us see how to find out. First of all, you see AMP. हमारे को क्या मालूम है? AP मालूम है और PM और MP मालूम है. हमें निकालना है AM. तो AM कैसे निकाला जाएगा? देखिए, इसके ठीक अपोजिट में ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है इस ट्रायंगल में. सो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसको सॉल्व किया. 15 प्लस 12 17, 15 माइनस 12 3. So 27 into 3, that is 81, that is 9. So AM will be equal to 9 centimeter. Now AB by AM. You see, these two triangles are similar, therefore corresponding sides are proportional. So AB by AM will be equal to AC by AP. We have to find AB. So AM को इधर ले जाइए आप. AB will be equal to AM into AC by AP. What is AM? That is 9. अभी वर्कआउट किया ना, 9 यहाँ पर रखा. AC कितना है देखिए, AC that is 10 सेंटीमीटर, और AP कितना है 15. हमने रख दिया 15. सॉल्व किया, 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया. अभी दूसरा क्या है? BC निकालना है. तो BC by MP is equal to AB by AM. सिमिलर ट्राइंगल है ना. देखिए आप, BC लास्ट के 2 लेटर और इधर MP लास्ट के 2 लेटर. अभी दूसरा क्या लिया मैंने? प्रोपोर्शन की साइड AB by AM. अभी हमारे को AB और AM मालूम है और MP भी मालूम है. MP कितना है? 12. So MP into AB by AM will be equal to 12 into 6 by 9. Solve किया, you will get the answer 8 centimeter. So BC is equal to 8 centimeter. ये BC जो है ये 8 centimeter आ जाएगा. Now proceed to the question number 20.
In the given figure, AB and D are perpendicular to BC. AB and DE are perpendicular to BC. हमें प्रूव करना है that triangle ABC and triangle DEC are similar. First of all, you see angle B is equal to angle E, that is equal to 90 degree. B और E जो है दोनों 90 डिग्री है. एंगल C दोनों ट्राइंगल में शामिल है, कॉमन है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. देखिए अगर ये लाइन पैरेलल हो गया तो ये एंगल भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो. देयरफॉर द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC बाय ट्रिपल A QED. नाउ सेकेंड पार्ट, that is AB is equal to 6 centimeter, D is equal to 4 centimeter, AC is equal to 15 centimeter. Calculate CD. हमें CD वर्कआउट करना है. देखो CD बाई CA, CD बाई CA, देखिए CD लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर, उसी तरह से CA हमने लिख दिया यहाँ पर. देखिए CD बाई CA इज इक्वल टू ED बाई BA. अब CD इज इक्वल टू CA इंटू ED बाई BA. अब देखिए CA मालूम है हमारे को, CA कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर 15, और ED कितना है 4 है, और BA 6 है. इसको सॉल्व किया 10 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर. Now third part is the area of the triangle ABC upon the area of the triangle DEC. These are the similar triangles, therefore the area will be in the proportion of a square of the corresponding sides. So 6 square. Which side is 6? AB का 6 लिया, तो यहाँ पर DE लिया. DE is equal to how much? That is 4 सेंटीमीटर. देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, इसको हमने क्या किया 36 बाई 16 कर दिया, सॉल्व किया 9:4 हो गया. ये आंसर हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 20 इज कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. इन ट्राइंगल ABC, द एंगल ABC is equal to DAC. AB is equal to 8 centimeter, AC is equal to 4 centimeter, and AD is equal to 5 centimeter. Prove that ACD is similar to triangle BCA. अब देखिए आप, यहाँ पर मैंने ABC एक ट्रायंगल बनाया है, उसमें एक AD लाइन है और है D is a point on the BC, और such that ABC एंगल जो है और C इज इक्वल टू, देखिए CBA इज इक्वल टू CAD. इसको मैं X से लिखा है, X यहाँ पर देखिए X और X लिख दिया. अगर इसको हम Z मान लेते हैं तो ये एंगल X प्लस Z होगा D. मतलब ये कंप्लीट एंगल, देखिए कंप्लीट टोटल एंगल X प्लस Z है, तो ये A के बराबर होगा. देखिए यहाँ पर CAD दैट इज X, CBA दैट इज आल्सो X. तो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, गिवन है. एंगल C इज कॉमन, एंगल C दोनों ट्राइंगल में आ रहा है. Hence the triangle ACD is similar to the triangle BCA. अब एंगल एग्जाम से ये सिमिलरिटी प्रूफ हुआ. सेकेंड पार्ट, फाइंड BC एंड CD. अब देखिए हम BC निकालना पहले. देखिए BC अपॉन AC, देखिए पहले कैसे लिखा, ये BC है, मतलब फर्स्ट 2 लेटर्स, इधर का फर्स्ट 2 लेटर ले लीजिए, BC अपॉन AC
इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। हम कॉरस्पॉन्डिंग उस साइड को चूज करते हैं जिसको वैल्यू दिया हो। देखिए ए बी हमें मालूम है, ए बी 8 सेंटीमीटर और ए डी 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए बी अपॉन ए डी, दैट इज 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, 32 अपॉन 5, that will be 6 and 2 by 5, it will be equal to 6.4 centimeter. Now the third part is area of the triangle ACD upon area of triangle BCA. This will be equal to AC square by BC square. AC square फर्स्ट टू लेटर लिया, BC स्क्वायर इसका भी फर्स्ट टू लेटर लिया। तो AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, AC कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर किया, BC कितना आया हमारा 6.4, 6.4 का स्क्वायर किया, तो हमारा रिजल्ट कितना आया 1/1.6 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2.56। अगर हम इसको 2.56 को कन्वर्ट कर देते हैं, रिमूव करते हैं पहले इसका डेसिमल, तो 100/256, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 25/64 आएगा, 25:64। दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 22। ABC is a right angle triangle with ABC is 90 degree. Angle D is any point, D is any point on the AB and DE is perpendicular to AC. Prove that AD is similar to the triangle ACB. If AC is equal to 13 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, AE is equal to 4 centimeter, find DE and AD. Find the area of ADE and is to area of the quadrilateral BCED. Now see here, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B पर 90 डिग्री का एंगल है। देयर इज ए पॉइंट D, D से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है AC के ऊपर जिसका फुट है E, मीन्स DE इज परपेंडिकुलर टू AC। तो देखिए यहाँ पर ADE इज सिमिलर टू द, हमें प्रूव करना है ADE इज सिमिलर टू ACB। ADE अब एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। एंगल E, ये एंगल E है जो, और ये एंगल B जो है 90 डिग्री है। एंगल A जो है ये कॉमन है, दोनों में है। ADE is equal to ACB. ADE is equal to ACB because there are these are complementary angles to the angle A. देखिए आप ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, अगर एंगल A में अगर ये स्टार वाला एंगल को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एक 90 है ही, तो एक कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया कि नहीं। ए का कम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्रॉस वाला या डी वाला समझिए। अब बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए और सी को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो डी और सी जो है दोनों इक्वल होगा, मीन्स ADE इज इक्वल टू ACB। Therefore, the ADE is similar to triangle ACB. Angle criteria are axiom of similarity. Now, AC is equal to 13 centimeter. AC is equal to 13 centimeter. BC is equal to 5 centimeter. AE is equal to 4 centimeter. Find DE and AD. सबसे पहले चलो D निकालते हैं। D अपॉन BC। D देखिए इसके लास्ट 2 लेटर है फर्स्ट वाले का, तो इधर से भी हम लास्ट के 2 लेटर लिखें तो D अपॉन BC
विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी। ए ई अपॉन ए बी हमने देखा, ऐसे साइड को लिया, ए ई 4 सेंटीमीटर है, ए ई, तो वहाँ पर देखेंगे ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कैसे आया? 13 का स्क्वायर किया -5 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 13 + 5 18, और 13 - 5 दैट इज 8। सो 18 8 जा 144, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 12 आएगा। मीन्स ए बी का लंबाई पता चल गया 12 सेंटीमीटर। तो हमने ले लिया यहाँ पर डी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी। सो डी ई इज इक्वल टू बी सी इंटू ए ई अपॉन ए बी, और ए बी हमारे मालूम है दैट इज 12। सो देखिए यहाँ पर डी इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 12। So 5/3 that is equal to 1.67 centimeter. This will be the answer of the second part. And AD is equal to AD upon AC. AD upon AC. हम तुरंत उसमें सिमिलर ट्राइंगल में जाएंगे। AD देखो फर्स्ट 2 लेटर है, तो ये इसका फर्स्ट 2 लेटर लेंगे। तो AD upon AC is equal to D upon BC। जो सेकेंड वाले को हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसका हमें मालूम हो, डी कितना है और बी सी कितना है मालूम है हमारे को। ए डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए डी इज इक्वल टू ए सी इंटू डी बाई बी सी। अब ए सी है 13 सेंटीमीटर और डी है 5/3। डी ई जो है वो हमारा 5/3 है, और बी सी जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। बी सी मैंने 1/5 कर दिया, यहाँ पर लिखा है 5 डिनोमिनेटर में। 5 से कैंसिल हो गया, 13/3 आ गया। सो ए डी इज इक्वल टू 13/3 दैट इज 4.33 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी हमें मालूम हो गया है। ए बी सी का देखिए लेग जो है, एक 5 है और एक 12 है। सो 1/2 इंटू 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई दैट इज 1/2 इंटू 4 इंटू 5/3। देखिए 1/2 4 हो गया, और डी ई हमने वर्कआउट किया था। डी ई हमने निकाला था, डी कितना आया था 5/3, हमने 5/3 रख दिया यहाँ पर। सो 4 को कैंसिल किया, 2 से डिवाइड किया, दैट इज 2, 2 5 जा 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3.33। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई दैट इज 30 minus 10/3। सो 30 इंटू 3 दैट इज 90, 90 minus 10 that is 80 divided by 3 that will be equal to 26.67. This is the area of the BCED. Now the area of ADE upon area of the quadrilateral BCD, the ratio निकालना है इन दोनों का। तो एक बार तो हमने ऐसे किया 10/3 डिवाइडेड बाई 80/3, ये 80/3 है और इधर 10/3 है। सो 1/8 आ गया, 1:8। दूसरा जैसे बुक में आंसर जो दिया हुआ है 3.33 अपॉन डिवाइडेड बाई 26/67, 3.33 whole divided by 26/67. In that case also, if you solve it, if you divide the numerator and denominator both by 3.33, you will get 1:8. But in the book answer is given that is 3.34 is to 26.67. In both cases I have mentioned that is 1:8. Here it is in the decimal part. It is given in your answer book. Now come to the question number 23. In the given figure, the PQRS is a cyclic quadrilateral. PQ and S are produced to meet at T.
prove that a triangle TPS is similar to TRQ. Find SP if TP is equal to 18 centimeter, RQ is equal to 4 centimeter and TR is equal to 6 centimeter. Third part है find the area of the quadrilateral PQRS if the area of the PTS is equal to 27 square centimeter. अब देखिए हमारे को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल शुड बी 180 डिग्री, मीन्स P plus R is equal to 180 degree. Similarly, S and Q, the sum of interior angles of the cyclic quadrilateral is 180 degree, or you can say the supplementary. अब दूसरा बात है, यहाँ पर देखिए अगर ये एक्सटीरियर एंगल को भी प्लस करें इंटीरियर एंगल में तो वहाँ पर ये लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर होने के कारण मतलब ये 180 डिग्री होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल या तो इंटीरियर एंगल R में P में प्लस कीजिए तभी भी 180, और नहीं तो TRQ को प्लस करेंगे तभी भी 180। इसका मतलब जो एंगल P है वो इस एंगल के बराबर हो गया। सिमिलरली एंगल S जो है ये एंगल एक्सटीरियर एंगल Q, जो एंगल S है वो एक्सटीरियर एंगल Q के बराबर होगा। T कॉमन है। Now prove that triangle TPS is similar to TRQ. यहाँ पर देखिए हमने एंगल SPQ प्लस एंगल QRS is equal to 180 degree. Because PQRS is a cyclic quadrilateral, so the sum of the opposite angle or the opposite angles are supplementary, and QRS plus QRT is equal to 180 degree. QRS and QRT is equal to 180 degree. हम दोनों को इक्वेट करते हैं, दे फॉर्म लीनियर पेयर। सो SPQ प्लस QRS इज इक्वल टू QRS प्लस QRT। दोनों 180 है, दोनों 180, ये भी है 180, दोनों को इक्वेट किया। इसमें से QRS माइनस कॉमन को कैंसिल कर दिया। हमारे को क्या मिला? SPQ इज इक्वल टू QRT, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल प्रूव भी कर दिया मैंने। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट PSR इज इक्वल टू RQT। देयरफॉर द ट्रायंगल TPS and triangle TRQ, in triangle TPS and triangle TRQ, angle T is equal to angle T common है। angle TPS is equal to angle TRQ, angle TSP is equal to angle TQR। Therefore, the triangle TPS and triangle TRQ are similar and QED, it was to be proved. Quod erat demonstrandum. Now the second part, SP by QR, हमें SP निकालना है। SP by QR is equal to TP by TR। अगर देखना है हमने जो प्रूव किया था ट्राइंगल को, तो देखिए यहाँ के SP हो गया लास्ट वाला 2 लेटर, यहाँ पर QR लिया लास्ट के 2 लेटर, तो SP by QR। अब देखो TP by TR हम उस साइड को लेते हैं, प्रोपोर्शन में लेते हैं जिसका हमें मेजरमेंट मालूम हो। तो TP by TR
कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी होना चाहिए और उसका मेजरमेंट मालूम भी होना चाहिए। तो एस पी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू टी पी बाई टी आर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 18/6। सॉल्व किया, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। नाउ द एरिया ऑफ टी पी एस, that is given 27 square centimeter. So area of TPS upon area of TRQ, the 27 दिया हुआ है area of TRQ and it is proportional to TP square by TR square. So 18 square by 6 square. So 18 divided by 6, that is 3 square, that is 9:1. So now the area of the TRQ is equal to, हमने इसको सॉल्व किया तो 9 का, देखिए इसको, ये 27/9 हो जाएगा। So TRQ will be equal to 27 divided by 9, that is 3 square centimeter. So area of the quadrilateral PQRS means area of TPS minus area of TRQ, that is 27 minus 3, that is 24 square centimeter. This will be the answer.